Hare Krishna, everybody. We welcome you all to this session on homeopathy, the myths and facts about homeopathy. A lot has been spoken about homeopathy during the current COVID pandemic. How useful it is it really working? Is it really helping in the prevention? So today we have two experts with us. That is Dr. Gopal Krishnan Nambiar and Dr. Ram Subramaniam. I will first introduce Dr. Gopal Krishnan Nambiar because he would be Gopi Krishnan, madam. Dr. Gopi Krishnan Nambiar. I'm sorry about that, but that was I would be introducing Dr. Gopi Krishnan Nambiar. He is MD in homeopathy. He has almost 24 years of experience, and he has completed his study from the Rajiv Gandhi University of Health Science, Bangalore, in the year 2000, and he has stood second in his academics. So, heartiest congratulations from all of us, Dr. Nambiar. Very much. Now, I would request him to start the session. Before that, just brief that is, he is practicing in Goregaon since 2001, and his special interests have been in autism, skin and respiratory disorders, PCOD, and infertility. Now, I request Dr. Nambiar to take over the session. Hare Krishna. This is Dr. Gopi Krishnan here. I am a consultant in Bhaktivedanta Hospital. I have joined Bhaktivedanta in the year 2002. So since then I am here in this prestigious organization. So today's topic is homeopathy and its benefits. So there have been a lot spoken about homeopathy. There are a lot of misunderstandings about homeopathy and whether it is effective or not. So we'll be talking about the myths and facts about homeopathy today. So the homeopathy has been founded by an allopathic doctor in the 18th century, who was Dr. Samuel Hahnemann, and it has a lot of health benefits. It improves the energy, boosts immunity, and being holistic, it works with harmony with the immune system, providing long-term resilience. And it is safe, gentle, and natural system of healing. And it improves mental health, it cures chronic diseases gently, and it is regulated and recognized by FDA also. होम्योपैथिक मेडिसिन बॉडी की नेचुरल डिफेंसेस को ट्रिगर करते हैं और अपने इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. सो डिसीजेस को अंदर आने में उन लोग रोक देते हैं. फर्स्ट मिथ यह है कि होम्योपैथी बहुत स्लो है. ऐसा नहीं है. होम्योपैथी इज अ रैपिडली इफेक्टिव एंड एक्टिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन. कई कई डिसीजेस जो क्रॉनिक हैं, काफ़ी लंबे समय तक उनका सफरिंग चल रहा है, तो वो सब डिसीजेस में कभी कभी होम्योपैथिक मेडिसिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं. नहीं तो एक्यूट केसेस में होम्योपैथी इज इफेक्टिव, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं. सेकेंड मिथ ये है कि होम्योपैथी इज अगेंस्ट सर्जरी. कभी भी नहीं है. होम्योपैथी सर्जरी के खिलाफ तो है ही नहीं. जो सर्जरी इंडिकेटेड सिम्टम्स है, डिसीजेस है, उसमें सर्जरी करना है, जैसे हर्नियाज इन एडल्ट्स एंड एक्सीडेंट्स, इमरजेंसीज. बाकी प्योरली सर्जिकल केसेस में सर्जरी करना ज़रूरी है. उसके लिए होम्योपैथी कभी भी अगेंस्ट नहीं है. लेकिन सम ऑफ द सर्जिकल केसेस या फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला, टॉन्सिलाइटिस, ये सब चीज़ें हम बिना सर्जरी के होम्योपैथी के थ्रू क्योर कर सकते हैं. थर्ड मिथ ये है कि विटामिन, आयरन टॉनिक्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ नहीं लेना है. ऐसा कभी भी नहीं है. फर्स्ट ये अंडरस्टैंड करना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ या कोई भी ट्रीटमेंट के साथ सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए. तो जब बॉडी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है सप्लीमेंट्स को, बॉडी वीक है, तभी हम सप्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं. जैसे कि आजकल सब लोग इंडोर्स है, घर के अंदर हैं, तो विटामिन डी की ज़रूरत कम, शरीर में विटामिन डी कम पड़ती है. ओके, विटामिन डी की कमी हो रही है, तो इसके लिए भी विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है. सो होम्योपैथी कभी भी सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट नहीं है.
फोर्थ मिथ ये है कि कॉफ़ी, ऑनियन, गार्लिक ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली ये सात्विक फूड तो है नहीं, लेकिन किसी किसी को आदत है कॉफ़ी की, तो हम बोलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेते वक्त उसी टाइम पे कॉफ़ी मत लेना, और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेने की आदत है तो वो मना है, और मेडिसिन के हाफ एन आवर के आगे पीछे ये सब चीज़ें लेना नहीं चाहिए। फिफ्थ मिथ यह है कि होम्योपैथी कैन नॉट बी टेकन विद एलोपैथिक मेडिसिन और अदर मेडिकेशंस। ये बिल्कुल गलत है, दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं, दोनों सिस्टम। और हम हमारे हॉस्पिटल में भी इंटीग्रेटेड वे ऑफ ट्रीटमेंट से दोनों मेडिसिन दे के पेशेंट्स को ठीक करते हैं। जब दोनों मेडिसिन साथ में देते हैं इफ़ेक्ट अच्छा आता है, और कभी भी कोई भी सिस्टम के अगेंस्ट होम्योपैथी है नहीं। एंड होम्योपैथिक मेडिसिन से काफ़ी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं, उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन मदद करती हैं। सिक्स्थ मिथ यह है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड्स है। ये बिल्कुल गलत है। होम्योपैथिक में कभी भी स्टेरॉइड्स नहीं है, स्टेरॉइड्स नहीं है। बिकॉज जब होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत फास्ट रिजल्ट आता है, 2-3 दिन में होम्योपैथिक मेडिसिन के रिजल्ट देखने लगते हैं, तो लोगों को लगता है कि इसमें कुछ है, स्टेरॉइड जैसी चीज़ है जो बॉडी को रिजल्ट डिसीज में क्योर करने के लिए मदद कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देयर आर नो स्टेरॉइड्स इन होम्योपैथिक मेडिसिन। इट्स एब्सोल्युटली सेफ एंड इट डजंट हैव साइड इफेक्ट्स। Myth 7 is homeopathy as a herbal medicine या it's a placebo treatment. होम्योपैथी में हर्ब्स है, लेकिन नॉट जस्ट प्लांट्स। इसमें केमिकल्स भी है, मिनरल्स भी हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स है, ऑर्गेनिजम्स है, ये सबसे होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है। होम्योपैथी इज यूज फॉर मोर देन 200 ईयर्स। मैंने बोला कि 18th सेंचुरी में डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन ने ये फाउंडेड किया है, तो एंड इट्स यूज्ड इन ओवर 170 कंट्रीज। एंड काफ़ी सारे साइंटिफिक क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुका है होम्योपैथी के ऊपर, और इट इज़ बीन प्रूव्ड दैट इट इज़ नॉट अ प्लेसिबो। एट मिथ है कि इन्वेस्टिगेशंस और डायग्नोसिस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। जैसे MRI, CT स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड रिपोर्ट्स, ये सब कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, सभी सिस्टम के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि डायग्नोज करना पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उनको टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, ये डायग्नोज करके उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट तय कर सकती है। सो ऑल द इन्वेस्टिगेशंस एंड डायग्नोसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑल्सो। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि होम्योपैथी लेते वक्त शुरुआत में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, कि हमेशा होम्योपैथी ये बढ़ा देते हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद कम करती है। ये गलत है। कई कई डिसीजेस में, जैसे क्रॉनिक एक्सिमा है, ब्रेथलेसनेस है, उसमें सप्रेसिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट किया है, तो जब होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करते वक्त थोड़ा सा ये बढ़ सकती है, अपने आप ये कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट में होम्योपैथिक मेडिसिन देते वक्त उनकी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप होम्योपैथ से बात कर लीजिए। नहीं उसका नहीं है, खाली इसका ही था, पूजा का ही है। ओके। 10th मिथ है कि होम्योपैथी वही वाइट पिल्स देते हैं, वही साबुदाने जैसा गोली हर एक ट्रीटमेंट के लिए, खांसी लेके आओ, खुजली लेके आओ, कैंसर लेके आओ, वही साबुदाना देते हैं। लेकिन दीज आर वाइट शुगर पिल्स, these are the carriers of homeopathic medicines. Medicines are sprinkled into them and the potent medicine is absorbed into the white pills. और मैंने ये फोटो में दिखा है कि पिल्स फॉर्म में भी हम मेडिसिन दे सकते हैं। हम इसीलिए प्रेफर करते हैं कि स्वीट पिल्स, सब लोग को मीठा पसंद है, तो बच्चों से लेके बड़े तक सब ये पिल्स इजीली ले सकते हैं, और पिल्स में ये मेडिसिन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। एंड होम्योपैथिक मेडिसिन लिक्विड तरीके से भी दे सकते हैं, जिसको प्रॉब्लम है स्वीट से, स्वीट्स नहीं लेना है और बहुत फ्रीक्वेंटली देना पड़ रहा है मेडिसिन, तो हम लोग लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। एंड थर्ड मोड ऑफ डिस्पेंसिंग इज लाइक टैबलेट्स। टैबलेट फॉर्म में ये दे सकते हैं, जैसे कि योक्रोसिन का वगैरह टैबलेट एलोपैथी में आते हैं, ऐसे टैबलेट्स हम अपनी क्लिनिक्स में बना सकते हैं। देयर इज अ डिस्पेंसिंग मशीन, सो ब्लिस्टर पैकिंग भी होम्योपैथिक में पॉसिबल है।
There are more than 3,000 medicines in homeopathy, and there are 10 variable powers of these medicines. 11th myth ये है कि होम्योपैथी क्योर्स ऑल डिसीजेस. एक्चुअली कोई भी सिस्टम में सभी ट्रीटमेंट का क्योर नहीं होती है. अल्टीमेट क्योर इज विद द गॉड. सो ये गलत है कि अभी कोई बोलते हैं कि होम्योपैथी में सभी ट्रीटमेंट हो जाती है, सब डिसीजेस ठीक होते हैं. सब सिस्टम को अपना अपना स्कोप एंड लिमिटेशंस हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी बिफोर ट्रीटिंग. नाउ ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट होम्योपैथ आपको तरह तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं. तो काफ़ी लोग क्लिनिक में आके भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि मुझे खांसी है, ये क्यों रिलेवेंट है कि मुझे गुस्सा आता है या मैं रोता हूँ, मुझे अकेले बैठने अच्छा लगता है, ये सब क्यों पूछते हैं. होम्योपैथी एक्चुअली आपको इंडिविजुअलाइज करते हैं और एक इंडिविजुअल को जो बीमारी है उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. तो सिम्टम्स आपके सभी, जैसे कि मेंटल सिम्टम्स हो, इमोशनल सिम्टम्स हो या फिजिकल सिम्टम्स हो, सभी ऑल टुगेदर कंसिडर करके आपका सही मेडिसिन डॉक्टर डिसाइड करते हैं क्या देना है. So this will help you help the doctor in prescribing the right medicine. So होम्योपैथ जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है उसका सही जवाब देना बहुत ज़रूरी है. If you answer it wrongly, he can always prescribe you a wrong medicine. So your symptoms, your mental symptoms, your emotional symptoms, all the problems has to be discussed very clearly with your homeopath. Now, homeopathy is effective in wide range of हेल्थ कंडीशन, जो आस्थमा है, ईयर इन्फेक्शंस, एलर्जीज, एक्सिमा, मेंटल कंडीशंस, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैरानोइया है, ये सब चीज़ में होम्योपैथी काम करते हैं. और पीसीओडी है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, बच्चों में ऑटिज्म, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, एडीएचडी, आईबीएस, आर्थराइटिस, किडनी स्टोन्स, ऐसे काफ़ी चीज़ों में होम्योपैथी अच्छा रिजल्ट देते हैं विदाउट कॉजिंग एनी मेजर साइड इफेक्ट्स. So I will be showing you few slides wherein I have treated these cases in hospital as well as in my clinic where I have got excellent results. So मैं अभी ये cases के बारे में आपको बताता हूँ. First स्लाइड है एक अल्सर पेशेंट के. इनको काफ़ी साल से पैर में अल्सर थे और काफ़ी ट्रीटमेंट ले चुके थे. उसके बाद मेरे पास आए और आप देख सकते हैं किस हिसाब से वो जो धीरे धीरे कम होते गया है. And then she is completely cured. This is only with homeopathic medicines. So this is a result of homeopathy when we treat properly, what results we get. सेकेंड स्लाइड भी एक अल्सर पेशेंट का है. इनकी खून की सप्लाई उस तरफ कम हो रहा था और उनको पिछले 2-2.5 साल से ये प्रॉब्लम था. एंड ही हैज़ इवन अंडरवेंट सर्जरी फॉर दिस प्रॉब्लम. सो आप देख सकते हैं फर्स्ट स्लाइड में उनकी जो अल्सर है बिल्कुल सफ़ेद जैसा था, खून की सप्लाई कम था और लेग वाज कोल्ड टू टच. सो सेकेंड स्लाइड में आप देख सकते हैं कि थोड़ा उसमें खून की जो रेडनेस आया है. एंड थर्ड स्लाइड अभी कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ है, अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द वुंड इज हील्ड. सो द लॉन्ग कट मार्क व्हाट यू आर सीइंग इज द ऑफ द सर्जरी. सो सर्जरी के बाद ये कंडीशन था और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद ये. नाउ दिस इज अ केस ऑफ वार्ट्स. बच्चों के हाथ में सभी उंगलियों में आप देख सकते हैं वार्ट्स आया है. वार्ट्स आर वायरल इन्फेक्शंस. सो इनके केस में पहले उनको आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड के डोर्सम में वाइट पैच एक देख सकते हैं. तो वहाँ पे वार्ट्स था. उन्होंने उसको जाके कॉटरेज किया, मतलब जला के निकाला था. इट्स अ मोड ऑफ सर्जरी. तो उसके बाद जब स्प्रेड हो गया तो उनका सभी उंगलियों में, सारी उंगलियों में आ गया और राइट हैंड के मिडिल फिंगर आप देख सकते हैं जिस हिसाब से ख़राब है. तो इनके ट्रीटमेंट में मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है डेफिनेटली, क्योंकि इनिशियली ये जो वाइट पैच जिधर उन्होंने कॉटरेज करके निकाला है वो सारे वॉट्स वापस आ गए थे. उसके बाद धीरे धीरे ये इनको अराउंड 8 to 10 months लगा मुझे ट्रीट करने में. लेकिन यू कैन सी द सेकेंड फोटोग्राफ एंड ऑल द फिंगर्स आर एब्सोल्युटली फाइन.
Now, this is a case of molluscum contagiosum. These are shiny, pearly, white eruptions, and this is also a viral infection. जबकि चेहरे पे आया है बच्ची का, बच्चों लोगों में ये ज़्यादा दिखाई देता है, बड़ों में भी आता है. मुझे काफ़ी पेशेंट्स आया हैं जो अडल्टहुड में भी ऐसे इरप्शंस आते हैं. एंड यू कैन सी द चेंज आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ होम्योपैथी. नाउ दिस इज अ केस ऑफ व्हाट, आई के कॉर्नर में इतना बड़ा मसा था उनका. एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स. मैंने एक फर्स्ट और लास्ट फोटोग्राफ मुझे मिला है वही लिया है. तो लास्ट फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं इट हैज़ बिकम वेरी स्मॉल. उसके बाद ये पेशेंट मुझे पास वापस नहीं आया, कंप्लीटली हो गया था, मेरे से फ़ोन पे बात हो गया था, बट आई कुडंट टेक अ फोटोग्राफ बिकॉज इट डिडंट कम बैक. यू कैन सी द डिफरेंस, कितना फ़र्क है. Now this is another case of what you can see. यहाँ पे जो what दिख रहा है eyelid पे, this is such a big one, and second photograph में completely गया है. This patient has come to me very long back, मेरे ख्याल से 10-12-15 साल पहले की है, और इन्होंने कुछ स्किन कंप्लेंट के लिए मेरे पास आए थे. तो इंसिडेंटली मैंने नोटिस किया इनके सर पे इतनी सारी जगह पे बाल गया है. तो मैंने पूछा ये क्या हुआ. मैंने बोला नहीं, काफ़ी टाइम से ऐसा है, कुछ ठीक नहीं हो रही है, मेडिसिन काफ़ी किया. तो मैंने बोला ये भी ठीक हो सकता है. देन ही सेड ओके लेट अस सी, एंड यू कैन सी द चेंज, एंड ही वाज वेरी हैप्पी. So these are the changes what we can get in homeopathic treatment. Now, this is another case of alopecia, wherein hair पूरा चला गया था, काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे, and then you can see how easily the hair has come back without any application, without any injections, without any hair transplant or anything. The hair has grown back to the fullest. Now this is a case of what, again on the soul. This case has been referred by a senior consultant from our hospital itself, and you can see the results. We got a result in very quickly. In few weeks, the what is completely gone. Now, the last slide where I wanted to say where homeopathy works. Those are difficult cases. Infertility. This is a case of infertility wherein they have taken a lot of treatment and they couldn't get a result. So after treatment, I heard she became pregnant, and then I did not know what happened. So I messaged them. I removed the number and the date to keep the privacy on. So then after some time I got this message, sorry sir for late, this is a result of your treatment. And so in infertility cases also homeopathy works wonders, and we get wonderful results in these cases. So that's all from my side now. Thank you very much. And if there are a few questions, I think there are. Yeah. So Yes, I think there are few questions, sir. Yes. So I'll answer them. So Doctor, one, oh, why? Yeah. Are you able to see? Hello. Is there a question? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है. To know why is the government? एक chat में है. Yeah, somebody wants to know why is the government of India not recognizing? Hello. Yes. Yeah. Can you hear me, doctor? Yes. See, this is a wrong thing. Government of India has recognized homeopathy. We have government medical colleges and dispensaries, and in down south and north, we can see a lot of government services in homeopathy, which is happening. Maybe in Maharashtra, the government involvement is slightly less, but then all over India, we have a lot of government medical colleges. We have a system
Ministry of Ayush, which deals with homeopathic system, and it is recognized by Government of India, and we are getting equal importance in all the system of all the treatment also. There's no problem in that. So another question is, I have taken treatment for asthma for my child. Can you explain how exactly it works to cure asthma? इसमें थोड़ा elaborately explain करना पड़ेगा. Maybe in the short time I won't be able to explain completely, but then still the way homeopathic medicine works, वो अभी तक exact कैसा है वो अभी तक मालूम नहीं है. But then asthmatic patients में we have to find out what is the reason first, whether they have any genetics, whether they have allergies or anything other than that, and food allergies. All these things consider करने के बाद, then we will be able to address the symptoms. And symptoms लेने के बाद हम decide करते हैं कौन सी medicine उनको देना है. ये medicine देने के बाद that medicine will be exactly a matching medicine for the child as well as the symptoms. So उस हिसाब से ये medicine काम करती है और asthma cure करते हैं. Any more questions? Any more questions now? And if there is anything more, you can definitely contact hospital and reach me in any of the modes that is possible. You can call up Bhaktivedanta Hospital to talk to me, or you can use Google search. My details are available on Google. You can contact me directly also. There won't be a problem. So, and then you can talk to me anytime, whenever it is possible. There's no problem. There's one more question. Do you have treatment for insomnia? Yes, we do have treatment for insomnia. First is that we need to find out why the person is having insomnia. We need to find out the reason exactly. कि उनका biological clock का problem है, या there are other problems, whether he is taking any tablets, medicines की वजह से हो रहा है. Because initial time में मैंने एक केस स्टडी किया था जिसमें एक बच्चू था जिसको स्लीपलेसनेस होता था. And then I read that a lot of medicines have been given. Then the doctor went into the details. This was during my student life. So we came to know that the last thing what the child does is the father comes from work and gives him a chocolate, and this was the triggering, the sweetness and the Cadbury, the cocoa in that was making the child awake through the night. So definitely we have treatment in insomnia with homeopathy. Anything else? So we can hand over to Dr. Ram Subramaniam for the next session, the pediatric part of it.